Okay, so welcome to you in session number 21. It's about teaching grammar. So we will continue it from where we left because they all are connected to each other. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So importance of grammar. One student was asked me about this question, and of course she asked whatever normally you will find many people think, but those who have no real research work, they just hear from each other. They have such thing as I have told you that when we teach at any school, college, university, or at any language center, we cannot keep grammar away. In fact, we teach first grammar and then we talk about other things. So grammar is something that give us rules, and through rules we control ourselves and we make things in a proper manner. Since we are educated, so we must know how to read and write both. It's not enough for us to only speak any that language, but we must know how to write it, and we must know also how to write in a better way. That is called formal writing and informal writing. So you can see here the book which I have already given sent you a soft copy of the book, and I hope you have also collected the pages which I have also submitted in the department. Have you read the book, or at least the pages which I asked you to read? Yes, sir. So chapter number 13 and 14 I ask you to read. You can see here explaining things. So it is a very good book, very interesting book, and it is definitely based on research. And I recommend you all to read this one before teaching anywhere. And definitely, I've taught many things from this book to you. So you can see here explaining things. During the explanation stage, teachers need to demonstrate both meaning and language. ये कि ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंग्वेज को उन्होंने डेमोस्ट्रेट कर दिया, दिस इज इनफ. सो टीचर नीड टू मेंशन बोथ meaning and language. Explaining meaning. One of the clearest ways of explaining the meaning of something is to show it. For example, what do you understand by this? आप explain कर रहे हैं किसी को, because through this way we also teach grammar. आप मिसाल के तौर पर किसी को explain कर रहे हैं और आप क्या show करेंगे? For example, mime. What do we call mime? M-I-M-E, mime. Yes, Arya. सर You कैसे रिपीट, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सप्लेनिंग मीनिंग, आप किसी चीज़ की मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्सप्लेनिंग मीनिंग में आप कैसे, मिसाल के तौर पर यू वांट समबडी एल्स टू परफॉर्म एन एक्टिविटी. सो यू आर डूइंग समथिंग, मिसाल के तौर पे आप उसे कुछ करके दिखा रहे हैं, एंड यू आस्क योर क्लास फेलो टू यू टू टेल व्हाट यू आर डूइंग. या आपने किसी स्टूडेंट को एक एक्टिविटी दी और आपने स्टूडेंट से कहा कि आपने ये करना है, और दूसरा स्टूडेंट जो है उसको बताएगा, मिसाल वो भाग कर दिखाना है.
एक स्टूडेंट भाग कर दिखा रहा है, दूसरा स्टूडेंट उसको बता रहा है कि ही इज रनिंग। इसी तरह से आपने जेस्चर के जरिए, थ्रू योर जेस्चर आप किताब उठाते हैं और उठा के कहीं रखते हैं, तो आपने दूसरे स्टूडेंट से कहा कि व्हाट इज ही डूइंग, तो वो क्या बताएगा, ही इज putting a book on that, on the table, or he is putting a book on this in that place. So this is how you are explaining meaning. Are you getting me? Through gestures, Yes, yes. through miming. Okay. इसी तरह से आपने हाथ ऊपर उठाया, नीचे किया, फिर उठाया, फिर नीचे किया, and you are asking your class what am I doing, तो उन्होंने कहा you are exercising, you are lifting your, you are raising your hand, then putting them down, then raising your hand, then putting them down. It means you are exercising. So this is how you are doing what, you are showing them, explaining them meaning through your actions, through your gestures. So this is how we can also explain them different meanings. किताब उठा के आप उनसे पूछे what is this, उन्होंने कहा this is a book. We can also use facial expressions. We can also use facial expression and body language to explain the meaning of sad, happy, frightened, etc. आपने facial expression का इस्तेमाल किया और सैड लुक अपने चेहरे पे लाए, तो आपने से कहा कि टेल मी हाउ एम आई, हाउ आई एम फीलिंग, सो दे विल से यू आर फीलिंग सैड. Or if you how I'm feeling, you're feeling very happy, so you are doing what, through your facial expression or through your body language. We can use pictures. पिक्चर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. वी कैन यूज पिक्चर्स टू एक्सप्लेन सिचुएशंस एंड कॉन्सेप्ट्स. देखिए, लैंग्वेज क्लासरूम में एक पूरा समझ लें एक एक्सपेरिमेंट वाली जगह होती है, जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. क्रिएटिविटी होती है इसमें, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है. मीन्स यू आर नॉट बाउंड टू सर्टेन थिंग. आपने देखा होगा आपके पास जो कोर्स था लैंग्वेज का, फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स, उसमें टीचर बाउंड नहीं था. टीचर जो है वो फुल फ्रीडम के साथ पढ़ा रहा था. ठीक है. So when you become teacher and you start teaching English language, so you will also have this freedom, inshallah, and it's up to your creativity, it's up to your innovation, how you create things and how you fulfill the needs of your teacher of learning a language. तो कहा जा रहा है कि you can also explain through pictures. For example, a picture of someone coming away from a swimming pool with dripping wet hair to show she has just been swimming. आपने कोई पिक्चर दिखाया जिसमें आप दिखाते हैं एक बंदे को जो कि स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहा है और उसके ऊपर उससे क्या है कि कतरे पानी के टपक रहे हैं. वो मतलब ये कहीं से आ रहा है, और तो आपने उनसे कहा कि टेल अस व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या कर रहा था, तो पता चला भाई ही हैज़ बीन स्विमिंग. ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल है, आपने वो बताया कि वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर द एक्शन द इफेक्ट ऑफ विच वी हैव स्टिल. मिसाल के तौर पर आप बाहर से घर आए और आप पसीने से शराब हो रहे हैं, ठीक है, तो किसी ने आपसे पूछा कि वेयर वर यू, तो आपने कहा आई हैव बिन रनिंग और आई हैव बिन वॉकिंग वेरी फास्ट. अब इसका यह मतलब नहीं कि मैं अभी भी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि द इफेक्ट विच यू सी ऑन मी इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्पिरेशन, इट इज़ बिकॉज आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट. ठीक है, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कह सकते हैं, आई हैव बिन वॉकिंग वेरी फास्ट. तो ये टेंस आपने समझाया स्टूडेंट को और उसमें सिचुएशन आपने ये दे दी. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. So these are different ways to explain meaning. फिर मजीद बताया जा रहा है कि we can use diagrams too. Many teachers use timelines to explain time. Simple versus continuous verb forms an aspect the present perfect. For example, if we want to explain the present perfect continuous, we can use a timeline to explain. जैसे I've been living here since 2011. तो I've been living here since 2011 का मतलब क्या है कि I'm using present perfect continuous which has past, present and future all time in it. ये 2001 से नाउ, ये आपने बता दिया डायग्राम के जरिए कि 2011 से लेकर अभी तक मैं यहाँ पर रह रही हूँ या रह रहा हूँ. सो इट मीन्स विच टेंस शुड आई यूज हियर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो वो बताएंगे हाँ वी हैव टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. If we can't show something in one of the ways mentioned above, we can describe the meaning of the word. अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिस शो करने के लिए, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी. ये क्रिएटिविटी होती है व्हेन टीचर ब्रिंग्स थिंग्स ऑन हिज ओन और ऑन हर ओन. टीचर को ये चीज़ें कोई प्रोवाइड अक्सर जगहों पे नहीं करता. ये तो उसके अपने अंदर की सलाहियत होती है कि वो उसके थ्रू, और अपने अंदर की सलाहियत और एफर्ट्स होती हैं उसकी, जिसकी मदद से वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत
चीज़ें लाता है जिससे स्टूडेंट को समझने में आसानी होती है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन शो समथिंग ऑन इन वन ऑफ द वेज मेंशन अबव। इफ़ यू डोंट हैव दिस थिंग सो यू कैन डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो आप इसको वर्बली डिस्क्राइब कर दें। वी कैन डू दिस बाय डिफाइनिंग द वर्ड। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास वर्ड है जेनरस। A generous person is someone who shares their time and their money possessions with you. Generous कौन है? जो कि अपना टाइम अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करता है। By using synonyms and antonyms, nasty is the opposite of nice, or by saying what kind of thing a word is. A radish is a kind of vegetable. तो उसको हम बता सकते हैं कि generous क्या है, उसका मतलब ये है। इसका सिनोनिम क्या है, यानी कि सिमिलर मीनिंग जो है उसकी वो क्या है, वो ये है। और इसके व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ दिस वन, तो वो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, दीज आर द मेथड्स विच हैव बीन मेंशन प्रीवियसली, दे आर मोर इफेक्टिव। ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें सामने आती हैं, प्रैक्टिकली स्टूडेंट को सीखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर वो थियोरेटिकल अप्रोच पे चला जाता है, और थियोरेटिकल अप्रोच थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। That's why we have functional English courses where we use functional English. Functional English का इस्तेमाल किया जाता है। If describing meaning isn't appropriate, we can list vocabulary items to explain concepts. For example, if you want the students to understand the idea of the caring of professions, we can list a number of jobs such as doctor, nurse, social worker, and counselor to explain the phrase. We can also use check questions to make sure the students have understood correctly. So there are different ways. So ये आप लोग पढ़िएगा इंशाल्लाह। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो so you can ask me. If they are learning how to make third conditional sentences, one of the example is she has missed the train. She would have been late for the meeting. अब मिसाल के तौर पर टाइप 3 का आप लोगों को मालूम है किसी को? टाइप 3 type 3, for example, I'm just writing one example of type 3. If you had worked hard, you would have got the job. This is a sentence of type 3. It means, इसका मतलब ये है, you didn't get the job because you did not work hard. ये इसका मतलब है, राइट? नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन गिव स्टूडेंट सिचुएशन। आप स्टूडेंट को कुछ सिचुएशन दे दें इस तरह का कि आप यही सिचुएशन दे दें कि यू डिडंट गेट द जॉब बिकॉज यू डिडंट वर्क हार्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव गॉट द जॉब। आपने एक सिचुएशन दी, शी डिडंट गॉट द एडमिशन बिकॉज शी डिडंट अप्लाई फॉर इट। इसका क्या मतलब हुआ? शी डिडंट गेट द एडमिशन बिकॉज शी डिडंट अप्लाई फॉर इट। व्हाट डज इट मीन? उसका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि उसने अप्लाई नहीं किया था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अप्लाई करती तो उसका एडमिशन हो जाता। यही है ना इसका मतलब? जी सर। यही है ना? तो आपने एक स्टूडेंट को सिचुएशन दी, अब उस सिचुएशन को वो क्रिएट कर रहा है कंडीशन में। इफ शी हैड अप्लाइड फॉर द एडमिशन शी वुड हैव गॉट द एडमिशन। ये उसका हो गया। आपने सिचुएशन दी उसके, शी डिडंट गेट द एडमिशन बिकॉज शी डिडंट अप्लाई फॉर इट। आपने उनसे कहा नाउ यू हैव टू मेक इट कंडीशनल। आपने इसको कंडीशन में कन्वर्ट करना है। सो शी converted into condition by this sentence that she had applied for the, if she had applied she would have got the admission. इसी तरह से आप उसको मजीद जुमले दे सकते हैं and they will convert them into conditional. इस तरह से अगर आप कंडीशनल टाइप 2 की मिसाल दे रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस देना चाहें so you can give them situation. For example, type 2 is used for imaginative situation. टाइप 2 का इस्तेमाल जो होता है इमेजिनेटिव सिचुएशन के लिए होता है, अनरियल कंडीशन कहलाती है।
तो आप स्टूडेंट को सिचुएशन दें कि इफ यू हैड 1 or 10 billion dollars. You know what is billion dollar? What is $1 billion? How much amount is this $1 billion? पहले आप उनको बताएं, समझाएं, $1 बिलियन कितना होता है? कुछ तो सर बोलें। 1 करोड़। 1 करोड़ नहीं होता। $1 बिलियन जो है एक 10 million होता है सर। $1 बिलियन जो होता है वो 1,000 million होते हैं, इज इक्वल टू 1,000 million. ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब आप सोचोगे कि 1,000 million कितने, तो एक 1,000 million जो होते हैं, $1 कितने का आजकल? 153 रुपये का, समझ लो। 153 रुपये का $1 है। $1। स्टूडेंट को थोड़ा सा तजस्सुस पैदा करें ना उसके अंदर, थोड़ा सा उसके अंदर सस्पेंस पैदा करें कि $1 153 रुपये का है, और आपके पास, और 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने होते हैं? 10 लाख। यही होते हैं ना भाई, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर $1 मिलियन। इसका मतलब है $10, और $10 का 10 लाख डॉलर्स का मतलब क्या होता है? तकरीबन 15 करोड़ रुपीस। ये है ना, 15 करोड़, 15 करोड़ रुपीस। आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके कि 10 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब है 15 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे 1,000 मिलियन है, ठीक है, $1,000 मिलियन। इसका मतलब क्या होगा अगर आप रफ टर्म्स पे देखेंगे? अच्छा, इसका मतलब होगा 153 अरब रुपए। कितने? 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। 1 बिलियन पाकिस्तानी जो होते हैं करेंसी, उसमें कितने होते हैं? 100 करोड़। इस तरह से अगर आप इसको डॉलर्स में, $1 बिलियन को कन्वर्ट करेंगे, 100 करोड़ का 1 अरब होता है। इफ़ यू कन्वर्ट इट $1 बिलियन इनटू पाकिस्तानी करेंसी, सो इट विल बिकम 153 बिलियन रुपीस। ठीक है, और आपके पास है कितने? 10। आपको जो सिचुएशन दी गई उसमें क्या? $10 बिलियन। तो इसका मतलब है आपके पास, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट $10 बिलियन, so it means you're talking about almost 1,500 बिलियन रुपीस। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट। मतलब हमारे यहाँ डिफेंस में अगर आप जाकर कोई बड़ा बंगला लेंगे तो आपको 8 से 10 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। कितने मिल जाएगा? 8 to 10 करोड़ रुपीस में आपको बड़े से बड़ा बंगला मिल जाएगा, बंगलो इन डिफेंस। ठीक है, आप स्टूडेंट को थोड़ा सिचुएशन बताएंगे, भाई ये है सिचुएशन। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि इफ़ यू हैड 10 बिलियन, अगर आप डायरेक्ट उसे कह देंगे ना तो बोलेगा क्या होता है 10 बिलियन, वो ऐसे ऊँट पटांग जवाब देगा, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। इफ़ यू से यू हैव दिस अमाउंट ऑफ मनी, अब उसे पता चला यार मेरे पास जो पैसा है वो तो बहुत बड़ी रकम है भाई। तो अब आप बता रहे हैं कि इफ़ यू हैव $10 बिलियन, व्हाट वुड यू डू फॉर द पुअर ऑफ योर कंट्री? ठीक है, और फॉर योर कंट्री। अब वो आपको बताएगा सोच सोच के, इफ़ आई हैड $10 बिलियन, आई वुड डू दिस, आई वुड बाय हाउसेस फॉर द पुअर, आई वुड buy, I would build schools, colleges where I would provide them free education. I would build hospitals for them. I would pay the loan of my country. I would bring jobs. I would open factories and schools and colleges and hospitals, and I would uh, do something very special for the homes of poor people. इस तरह से वो अपना पूरा बता रहा होगा इमेजिनेशन, क्योंकि पता है इतनी सारी रकम उसके पास है। आर यू गेटिंग मी? तो आपने सिचुएशन क्रिएट की एंड देन यू हैव गिवन दैट सिचुएशन, एंड देन स्टूडेंट्स आर मेकिंग सेंटेंसेस एंड दे आर आल्सो participating in it. Is that clear?
यस Yes, सर। sir. तो ये चीज़ें आपको करनी होगी और आपको एग्जाम्स में जब आपको सवाल जब आपको दिया जाएगा तो आपने उसमें ये बताना होगा। Was that slide visible to you? जिससे मैंने पूरा एक खाका खींचा। ओके। Sometimes this is easy. All languages have a word for book. Sometimes, however, it is complex. Many languages do not have an absolute equivalent for such things. Sometimes it happens. थोड़ा मिस करके मैं आगे पीछे हो गया। Just let me go there. Repetition का मैं आपको बता चुका हूँ। Repetition can be either choral or individual. This can also happen when we use choral repetition. We get all the students to say the new word or phrase together. इसका तो clear है ना? Repetition. Sometimes it happens that we ask students to repeat things. So during the practice or accurate reproduction phase of an explain and practice sequence. So choral में सब एक साथ repeat करते हैं. For choral repetition to be effective, it is important to start the chorus clearly. Drills. If we feel the students have done enough repetition of a phrase or phrases, we may organize a quick cue response session to encourage controlled practice. For example, that we have taught a class of beginner students a series of phrases. Drills वगैरह फिर हमारे पास होती है, drills करते हैं. Discover and practice, I've just told you. You can also engage students in research and practice.
Now teaching grammar. As I told you that when we teach them, so many times it happens that the student learn grammar. Grammar teaching sometimes happens as a result of other work the students are doing. For example, when they study language in a text they have been reading or listening to, or when a grammar problem presents itself unexpectedly. तो इन सब में grammar teaching साथ साथ होती रहती है. Grammar teaching may grow directly from the task the students are performing or have just performed as part of the focus one. Just I have given you the example of one paragraph. आपने student को paragraph दिया, or you write on the sentence on the board some sentences and you ask students which tense it is. So student will tell you this tense it is. इस तरह से आप स्टूडेंट से ये भी करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल you can see here you can ask students what is the structure of this sentence. इस sentence का structure क्या है? Present continuous. No, structure. What is the structure of this sentence? Hurry up. Structure. Analyze this sentence from parts of speech point of view. Parts of speech के point of view से इसको analyze करें. क्या है ये? जल्दी बताएं. You can write. Sir, it is used for intention. No. You're telling me about the purpose of the sentence. I'm just asking you, कि what is according analyze this sentence from parts of speech point of view. आप अभी grammar के point of view से देखेंगे ना, आपने जुमला बोर्ड पर लिखा and you ask students to tell me about this sentence from part speech point of view. हर एक word को analyze करें क्या है ये. For example, she. What is she? She is according to part speech क्या है? क्या कहलाएगी ये? Noun. Subject. According to part speech it is pronoun. Pronoun. ठीक है. कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन. और इज क्या है? हरिया, व्हाट इज इज? शी का मैंने आपको बता दिया, इट इज हेल्पिंग वर्ब. इज जो है पार्ट स्पीच के लिहाज से क्या है? कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब. चलिए आपने इस हेल्पिंग वर्ब का मैं इस हेल्पिंग वर्ब भी लिख देता हूँ. गोइंग क्या है? ये स्पीक लाउडली. गोइंग इज वर्ब. ठीक है. गोइंग इज अ वर्ब, आईएनजी फॉर्म. टू इज व्हाट? Yes, hurry up. Preposition. Preposition, sir. Or what do you say about college? College is a Object. noun. Noun. Part speech में object नहीं होता. So according to part speech, she is. यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ. I am doing it on computer definitely, but you can do it by underlining them. आप इनको जो कर सकते हैं एनालाइज, you can do it on the board by underlining. आपने अंडरलाइन किया she को और उसके ऊपर लिख दिया आपने it is personal pronoun. आपने pronoun लिख दिया, p लिख दिया, and then p. Then you can highlight this one, and then because part speech के point of view से you have to analyze each and every part of the sentence. Then you can underline this one. फिर उसके बाद आप सबको अंडरलाइन करके ऊपर लिख दीजिएगा कि ये क्या क्या है. ठीक है, अलग अलग. ये चूँकि कंप्यूटर इज, दैट्स व्हाई आई कांट डू दिस थिंग, बट व्हेन यू डू इट ऑन द बोर्ड यू कैन डू इट. इस तरह से अगर आप उनसे यही सवाल दोबारा उनसे पूछेगा, नाउ टेल मी अबाउट इट फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. स्ट्रक्चर से के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस? तो बताएं जल्दी से, क्या है इसका फॉर्मेशन? या सब्जेक्ट. हरी अप. सब्जेक्ट. Helping verb. हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब. हेल्पिंग वर्ब भी है, उसके बाद वर्ब है जी, लेकिन वो इज हेल्पिंग वर्ब. या लेकिन याद रखिए कि स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सिर्फ वर्ब ही होता है. स्ट्रक्चर में सारे जो Okay, वर्ब sir. है वो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है, ये आपने स्टूडेंट्स को पहले बताना, स्टूडेंट को पता होगा, नहीं तो आप पहले बताएंगे. देखिए स्ट्रक्चर के ओके सर.
स्ट्रक्चर के सिर्फ 5 पार्ट्स, देयर आर ओनली 5 पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर, देयर इज नॉट अ 6 पार्ट, यानी कि छठा कोई हिस्सा नहीं। वो 5 पार्ट्स कौन से होते हैं स्ट्रक्चर के? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, Object. एडवर्बियल, कॉम्प्लीमेंट। ये 5 पार्ट्स आपको मिलेंगे, छठा कोई नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब जो भी स्ट्रक्चर होगा इन्हीं 5 पर होगा। मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास जो आपके पास जुमला है, दिस जो सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस इज दिस वन, SVA। एक जुमला और आपके पास दिख रहा हूँ, ही विल गो और विल स्पीक इंग्लिश। इन द क्लास, ठीक है। अब ये जो जुमला है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ही सब्जेक्ट है, विल स्पीक वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास एडवर्बियल है। तो जब आप स्टूडेंट के सामने जुमला लिखेंगे, उससे पूछेंगे ग्रामर के लिहाज से टेल मी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस, तो वो बोलेगा सर SVOA, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप इसका पूछे, इस तरह से आपने पूछा आई रन इन द स्ट्रीट, इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्टूडेंट जवाब देगा S या SV, कोई भी टाइम प्लेस होता है उसको एडवर्बियल कहते हैं, A। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन गिव देम प्रैक्टिस। इस तरह से भी आप स्टूडेंट्स को ग्रामर की प्रैक्टिस दे सकते हैं। यू कैन आस्क देम अबाउट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन आस्क देम फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को पार्ट स्पीच के बारे में पता हो, एंड स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट स्ट्रक्चर। अगर उसको स्ट्रक्चर के पार्ट्स के बारे में नहीं पता तो वो बेचारा क्या बताएगा आपको? इफ ही डजंट नो अबाउट पार्ट स्पीच, देन ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू अबाउट दीज पार्ट्स। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, इस तरह sir. से आपने बोर्ड पर लिखा और बोर्ड पर लिखने के बाद स्टूडेंट से पूछा बारी बारी, एंड स्टूडेंट विल टेल यू सर इसका फार्मूला ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब ये एक जुमला आपके पास मिसाल के तौर पर, ही बॉट अ मोबाइल फोन yesterday। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जल्दी बताएं। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में कि व्हाट आर द पार्ट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम, ये प्रॉब्लम हो रही होगी, तभी आप बता नहीं पा रहे। जल्दी बताएं इसका फार्मूला क्या है? फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब, Object. ऑब्जेक्ट, राइट। और ये yesterday क्या होगा यहाँ पर? एडवर्बियल। टाइम, प्लेस, ये सब एडवर्बियल होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है। स्टूडेंट को पता चल गया कि यार ये स्ट्रक्चर इसका, दिस इज द स्ट्रक्चर of this particular sentence. So every sentence has a structure from grammatical point of view, and we can analyze every sentence from parts of speech point of view as well. Is that clear? Yes, sir. So grammar teaching may grow directly from the task students are performing or have just performed as part of a focus. तो इस तरह से आप grammar teaching करते हैं. It can be deduced in a number of ways, or we can show our students grammar evidence and ask them to work out for themselves how the language is constructed. तो इससे बहुत सारे तरीके. Introducing grammar, the following activities represent a range of possibilities, some simple, some more elaborate for introducing new grammar. जैसे ये बता रहे हैं, what does she do? Aim, the students will be able to make statements about people's routine actions and states. आपने स्टूडेंट्स को प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया ना, तो आप स्टूडेंट्स को प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या देंगे? यू विल आस्क, गिव देम सिंपल टॉपिक्स जिसमें सिंपल बताना होगा। जिस मिसाल से यू गिव देम रूटीन, टेल मी अबाउट योर रूटीन, गेसिंग जॉब, मेकिंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूटीन, किसी भी एज बिगिनर लेवल के लिए नॉर्मली होता है, ठीक है। इन दिस ग्रामर, या आप स्टूडेंट से कहते हैं कि टेल मी व्हाट डू यू डू एवरी डे, आप रोज़ाना क्या करते हैं, और व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, तो स्टूडेंट आपको बताएगा आई प्ले, आई गो टू प्ले ग्राउंड, आई प्ले सम गेम्स, देन आई कम बैक एंड आई हैव सम मील, देन आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम, दिस इज हाउ आई स्पेंड माई इवनिंग, ठीक है, वो आप उसको बता रहे हैं। देन दे हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू से अफर्मेटिव, उनको आपने नेगेटिव ये चीज़ें पहले बता दी, पढ़ा दी, एंड यू हैव गिवन देम प्रैक्टिस। अब आप उनको मतलब ये कि एक्टिविटीज़ के थ्रू बता रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें दी, होल्ड अ नंबर ऑफ
flashcards or indicate different pictures projected on IWB or for example elicit the words dogs get up. मतलब इसमें इतनी वैरायटी कि आप के स्टूडेंट से कह सकते हैं कि टेल मी अबाउट द डॉग, टेल मी अबाउट द डॉग, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, टेल मी अबाउट द डॉग। अब स्टूडेंट्स को उसमें 5, 6 या 7, 8 जुमले बनाने। यू कैन आस्क स्टूडेंट के टेल मी अबाउट योर रूम, टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स। वो इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स पर एक पूरा मजमून लिख के या एक पूरा पैराग्राफ लिख के ला रहा है। ये सब चीज़ें जो है यू विल देयर हैव टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यहाँ देखें पिक्चर्स दिखा दी आपने उन्हें एंड यू कैन आस्क देम अबाउट देम, टेल मी व्हाट दे आर डूइंग। So if they tell you what they are doing, so it means that they are using present continuous. Show the student a picture of Sarah. Ask them what they think Sarah's job is, but do not confirm or deny their suggestion. Picture देखा उनसे पूछे कि सर ये इनकी जॉब क्या हो सकती है, तो वो जो है मुख्तलिफ they will give him different suggestions. She doesn't like dogs. She gets up early. She doesn't drive a car. She rings doorbells. She doesn't earn a lot of money. She wears a uniform. इस तरह से वो आपको जुमले बना के देंगे, नेगेटिव भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैप्टर को दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ लें। Here you will find many ways to teach grammar. Okay, तो इस पर थोड़ा सा हम and if you have any question you can ask me. Yes. Let me mark your attendance first. Yes. So tell me about your feedback of today's sessions. Were things interesting or boring, or what was? What do you think about them? Sir, it was very interesting and as well as बहुत very interesting था ये। informational. Very functional. So this is how you can make difference. आपने जो बताया था ना कि सर बहुत से लोग कहते हैं, तो ये चीज़ें पहले मेरे साथ भी होती थी। When I started teaching in 2000, आपका तो दौर अभी का है, मेरा दौर जो है 20 साल पुराना है। When I started teaching 2000, that time there were very few institutes, language institutes, and very not many things. Even we did not have technology. So remember, हम जो बात करेंगे, आप जो बात करेंगे, हम जो बात करेंगे, ऑथेंटिक बात करेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर एंड वी आर डूइंग रिसर्च, और हम रिसर्चर्स को पढ़ रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों को बाहर मिलेंगे 90 या 80% या 85% और 90% आई वुड से दे आर नॉट फ्रॉम दिस सेंस प्रोफेशनल, बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड रिसर्च। उनकी खुद की रिसर्च नहीं, ना ही उन्होंने रिसर्च पढ़ा है। ठीक है, तो वो सिर्फ बात करते हैं क्या कहेंगे उसे, हम असम्पशन से बात करते हैं। ठीक है, जब वो रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे और खुद रिसर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा असल हकीकत क्या है। सो ऑल दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी दे आर ग्रामर इज स्टोर्ड इन द